ہم لاتے ہیں ٹاک شوز اور انلمیٹڈ انٹرٹینمنٹ صرف یوٹیوب پر۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کر کے ہماری لیٹسٹ ویڈیوز کے بارے میں اپڈیٹ جانیں۔ سبسکرائب کیجئے اور ہم آپ کو لیے چلیں گے آپ کی فیوریٹ ویڈیو کی طرف۔ خدا نے چاہا تو میں ممبر پہ جا کے آج خطبہ پڑھوں گا۔ کس مناسبت سے؟ میں امیر ابن زیاد کی حکومت کا نائب ہوں۔ امیر ابن زیاد خود رے کی کون سی جہنم میں چلے گئے ہیں کہ آپ کو اپنی حکومت کا نائب بنا دیا ہے انہوں نے؟ استغفار کرو امیر، نہ تو میں عمر سعد ہوں اور نہ ہی یہ لوگ جو کھڑے ہیں عورت ہیں۔ عامر ابن مسعود، ہنگامہ مت کرو، بیٹھ جاؤ۔ یہ دو افراد جو تم دیکھ رہے ہو قاصد خلیفہ ابن زیاد ہیں۔ ان کی جانب سے کوفے کے مومنین کے لیے پیغام لائے ہیں۔ خدا کی پناہ، کیا آپ لوگوں نے سنا؟ ابن زیاد اپنے آپ کو خلیفہ کہلوا چکا ہے اور یقیناً اس کا پیغام بھی یہی ہوگا کہ کوفے والے اس کی بیعت کر لیں۔ کچھ تو شرم کرو کوفے والو، خدا کے گھر کا ممبر کیا اس قدر لاوارث ہو گیا ہے کہ ہر نااہل اور کم حیثیت شخص اس پر بیٹھ جائے؟ تمہارا ممبر و محراب سے کیا واسطہ؟ اے بدتمیز عرب، اپنے منہ سے زیادہ بڑی بات کر رہے ہو۔ کیا تمہارا سر جسم پر بھاری ہو گیا ہے؟ خلیفہ مرا ہے مگر اموی حکومت نہیں مری ہے۔ امویوں کے پاس ڈھنگ کے لوگوں کی کمی نہیں ہے۔ تم کیا سمجھتے ہو کیا تمہارے جیسے لوگ جو آل زبیر کے کرائے کے پلے ہوئے ہیں وہ لوگ آل امیہ کے خلاف سر اٹھا سکتے؟ جاؤ اپنی جگہ پر بیٹھ جاؤ عامر، فتنہ برپا مت کرو۔ اے کوفہ کے لوگوں، اے کوفہ کے رہنے والوں، یہ جان لو کہ بصرہ والوں نے ابن زیاد کی بیعت کر لی ہے۔ بصرہ والوں نے بہترین کام کیا۔ خلیفہ کے نائب کو دیانتدار اور دین کے احکام سے واقف ہونا چاہیے۔ میں ایک شکی انسان ہوں بن حریث، 3 اور 4 رکعت میں شک ہو جائے تو کیا کرنا چاہیے؟ شکی انسان تو انسان نہیں ہوتا۔ تمہاری نماز پر افسوس ہے عامر، جبکہ تم نماز میں ہر چیز اور ہر کسی کے بارے میں سوچ سکتے ہو سوائے خدا کے۔ خلیفہ کے امیر کو معیشت اور امن و امان کی فکر کرنی چاہیے، سمجھے؟ یہ شکیات نماز، مبطلات وضو، یہ احکام نجاست اور محرمات اور مطہرات کے مسائل ان علماء سے پوچھنے چاہیے جنہوں نے دینی دروس پڑھے ہوں۔ یہ علماء امیر کی دسترس میں ہوتے ہیں اور لوگوں کی دینی مشکلات بھی حل ہو جائیں گی۔ منظور، بالفرض میں ایک بڑے گھرانے کا وارث ہوں۔ خدا جانتا ہے کہ نہ میں سستی کرتا ہوں اور نہ بغیرت ہوں۔ دن رات اپنا خون پسینہ ایک کر دیتا ہوں مگر اپنے گھرانے کا پیٹ نہیں بھر سکتا۔ جبکہ میں ایسے مسلمانوں کو دیکھتا ہوں جن کے گھر کے کتے بلی بھی میرے گھر کے بچوں سے زیادہ سیر ہوتے ہیں۔ آپ جو کہ لوگوں کی معیشت کی فکر میں ہیں، یہ بتائیے کہ میں کیا کروں، جبکہ نہ تو میں حرام کر سکتا ہوں نہ چوری کر سکتا ہوں۔ جاؤ مر جاؤ، تم زندہ ہی کیوں ہو جب اپنے گھرانے کا عزت سے پیٹ تک بھی نہیں بھر سکتے؟ کس نے کہا تھا کہ گھرانہ اتنا بڑھا لو کہ ان کا پیٹ بھی نہ بھر سکو؟ اس منطق کے تحت آپ میں سے اکثر لوگوں کو مر جانا چاہیے کیونکہ آپ تنگ دست ہیں۔ جہاں تک ہم جانتے ہیں
خلیفہ اور اس کے کارندوں کو سنت رسول پر چلنے والا ہونا چاہیے تاکہ وہ مظلوم کا حق ظالم سے چھین کر لے. شاباش عامر، شاباش شاباش، بہت اچھا. خلیفہ اور اس کے کارندوں کو عادل ہونا چاہیے تاکہ نہ ہی کوئی مسلمان زیادہ کھانے سے مرے اور نہ ہی کوئی مسلمان کم کھانے کی وجہ سے. خدا عامر، شاباش تم تو آل زبیر کے طرفدار ہو، جھوٹے کہیں کے آل علی کے جملے لوگوں کو کیوں سنا رہے ہو؟ سن رہے ہو لوگوں، اس سے زیادہ مکاری اور چالاکی کیا ہوگی؟ یہ باتیں علی کے دور کی تھیں جو ختم ہو گئیں. آل زبیر کے موٹے کھوسٹ خلیفہ کو ان باتوں سے کیا؟ میں اس قدر غیرت اور مردانگی رکھتا ہوں کہ اپنی حکومت اور اقتدار کے حصول کے لیے شریعت اور دین کی باتوں کا سہارا لے کر لوگوں سے کوئی ایسا وعدہ نہ کر لوں جو پورا ہی نہ کر سکوں. خدا کے گھر کے ممبر کو نجس مت کرو ملعون، نیچے اترو. یزید تو مر گیا مگر اس کے کتے اب بھی لوگوں کی جان نہیں چھوڑ رہے. کوفیوں کو اموی خلیفہ نہیں چاہیے، خلیفہ زبیری چاہیے. عبداللہ زبیر خلیفہ، عامر ابن مسعود امیر. عبداللہ زبیر خلیفہ، عامر ابن مسعود امیر. عبداللہ زبیر خلیفہ، عامر ابن مسعود امیر. ان خرافات کے ساتھ تو کوفہ بہت جلد زمین بوس ہو جائے گا. کوفے والے بدنصیب لوگ ہیں. آج سے کوفے سے امن و امان ختم ہو جائے گا. تم نمک حراموں کا حق بنتا ہے کہ تم لوگوں پر بلا پڑے. مجھے تو آل زبیر پر حیرت ہو رہی ہے کہ آج تم نامردوں کا کیا عراق عرب کے حالات پرآشوب ہیں. ہمیشہ کی طرح کوفہ میں فرقہ واریت اور مختلف گروہوں کا میدان جنگ بن گیا ہے. اب میرا خیال ہے کہ جلد از جلد ان لاوارث بھیڑوں کی فکر کیجیے اور آج ہی کوفہ کے امیر کے تعین پر غور کر لیجیے. جس قدر یہ موضوع پرانا ہوتا جائے گا اتنا ہی کوفہ پر تسلط پانا مشکل ہوتا جائے گا. مسئلہ کوفہ ہم سب کا مسئلہ ہے. ہمارے خیال سے وہ واحد آدمی جو کوفے کے معاملات کو بآسانی سنبھال سکتا ہے وہ ہے ابو اسحاق، جو عراق کو بھی اچھی طرح سے جانتا ہے اور کوفے کی تقریباً پوری اکثریت کا محبوب ہے، اور کچھ ادھار بھی ہے جو ہمارے سر پر ہے. احسنت، مرحبا اس حسن انتخاب پر.
खुदा की कसम आपने बेहतरीन इंतखाब किया है। कूफियों की अक्सरियत अबू इसहाक को बहुत चाहते हैं, खास तौर पर तव्वाबीन, जो कि बेशक इनके हम आवाज हैं। बहुत बहुत मुबारक हो मुख्तार, बेशक आप कूफा के अमीर होने के लायक हैं। बहुत खूब अबू इसहाक, वादा वफा कर दिया हमने। हर चंद के आप मक्के में हमारे लिए अमन के परवाने थे, मगर क्या करूं कि इराक तुम्हारी दरियात और तदबीर का मोहताज है। जल्दी करो अबू इसहाक, कूफा तुम्हारे इंतजार में है। नहीं, गुजारिश है कि मुझे माफ रखें। क्यों मुख्तार? मैं एक जंगजू हूँ, सियासतदान नहीं। जैसा कि आपने फरमाया कि कूफा को एक समझदार और सियासतदान अमीर की जरूरत है, ताकि समझदारी और होशियारी से कूफियों पर कामयाब हो सके। मैं खुद जानता हूँ कि मेरे पास ऐसा कोई हुनर नहीं। तुम इनकिसारी दिखा रहे हो मुख्तार, इनकिसारी से काम ले रहे हो। तुम्हें याद नहीं कि तुम्हारी हमसे बैत करने की शर्त इराक की हुकूमत थी? वो शर्त सिर्फ एक सवाल या निशान था आपको पहचानने के लिए। मैं ये जानना चाहता था कि आपकी नजर में मुख्तार की क्या कदर व कीमत है, बस इतना ही। मेरी हुकूमत का तख्त घोड़े की जीन है और मेरी राया तलवार। मैं फौजी लिबास में बड़ा हुआ हूँ और मेरी जबान एक जंगजू सिपाही की दो टोक और सख्त जबान है। हुकूमत करने के लिए एक नरम, मीठी और रंग बरंगी जबान चाहिए। ये वो सबक है जो मैंने खुद आपसे सीखा है। तो फिर बेहतर यही होगा कि मैं मक्का में आपके हुजूर में ही रहूं। बहुत खूब मुख्तार। नहीं, देखो कौन है जो कूफे की हुकूमत के लिए मुनासिब होगा। हाँ, जाहिरन कूफे वालों ने इस खत में एक शख्स का इंतखाब किया। बेहतर है कि खलीफा उनकी राय को भी देख ले। किसका इंतखाब किया है? आमिर इब्न मसूद का। हाँ, आमिर इब्न मसूद एक दीनदार और खैर खा इंसान है, मगर सिर्फ दीनदार और खैर खा है। क्या वो कूफे जैसे शहर से निमट सकता है? हाँ, मुझे बैद लगता है। कुछ अरसे उसे मोहलत दे दीजिए कि वाली कूफा बन जाए। अगर वो लायक और समझदार निकला तो बहुत खूब, न हुआ तो एक जिम्मेदार इंसान को कूफे की हुकूमत के लिए चुन लीजिएगा। जनाब खलीफा, कूफियों की राय पर एतमाद करना कूफा के लोगों को आले जुबैर का चाहने वाला बना देगा। अच्छी राय है, अगरचे हमें लगता है कि मुख्तार कूफे की हुकूमत के लिए सबसे उगला है कि उसने मना कर दिया। मुख्तार के फैसले के पीछे कोई फितना छुपा हुआ है।
कैसा फितना? ये तो अब तक मुझे भी नहीं पता, मगर मुझे यकीन है कि वो कुछ गलत इरादे रखता है। क्या वाकई आप उसे कूफा की हुकूमत देना चाहते थे? मैंने तो दे दी थी, मलून ने कबूल नहीं की। ताज्जुब है, तो फिर हम क्यों पागल बन रहे हैं? क्या मतलब है? क्या हमें पता नहीं चलना चाहिए कि मुख्तार ने हुकूमत कूफा को क्यों कबूल नहीं किया? मुझे पता है। तो बताओ, क्यों कबूल नहीं की? पहले मुझे बताइए कि क्या इरादा था आपका, फिर मैं बताऊंगा कि उसने क्यों कबूल नहीं की। मेरा तो कोई ऐसा इरादा नहीं था। इस तरह तो मुझे भी कोई इल्म गैब नहीं है जनाब अमीर कि मुख्तार ने हुकूमत कूफा को क्यों कबूल नहीं किया, और वाकई कैसे जान सकता हूं मैं? तो फिर किस काम के हो तुम? अगर मुझसे इतनी बातें छुपाएंगे तो मैं भी किसी काम का नहीं हूं। आप फौरन हुक्म दे सकते हैं कि मुझे फारिग कर दिया जाए और मुसलमानों की बैतुल माल को मुझ जैसे शख्स पर हराम ना करें जो किसी भी काम का नहीं। तुम ऐसा क्यों सोचते हो कि मैं तुमसे कुछ छुपा रहा हूँ? क्योंकि रोज़ रोशन की तरह वाज़ेह है, हुकूमत कूफा के लिए मुख्तार को चुनना हरगिज सोचा समझा और माकूल फैसला न था न है। आप तो जानते हैं कि अगर मुख्तार कूफा पहुंच गया तो नाउज़ुबिल्लाह खुदा भी उसे नहीं रोक सकेगा। तो फिर आप उसे किस तरह कूफा भेज सकते हैं, सिवाय इसके कि आप उसे धोखा देने के लिए भेजना चाहते थे, या फिर मक्का और कूफा की राह में उसका किस्सा तमाम करना चाहते थे। जब बछड़ा हद से ज्यादा बड़ा हो जाए तो उसकी माँ को शदीद परेशानी हो जाती है। अभी बहुत वक्त लगेगा तुम्हें एक समझदार सियासतदान बनने में। यहाँ तो सिर्फ मैं और आप हैं, और इसके अलावा खुदा भी। वाकई तुम किसी काम के नहीं हो। बेनसहाल एक राज जब जबान पर जारी हो गया तो वो राज नहीं रहता, हरफ आम हो जाता है, फैल जाता है। आज के बाद जो आ जाए ज़बां पर कोई राज, बंद रखना लबे बदसाज, रखो राज को राज, ध्यान रखना कि न हो जाए सुगनसाज, वरना होगा कफस उम्र का तेरी दरबाज, मुर्ग जान तेरी निकल कर करे उससे परवास। ये जो आपने फरमाया, क्या ये शेर था? नहीं, धमकी थी। मैंने रतीब काफिये के साथ दी है ताकि मर के भी ना भूल सको। अब बताओ कि मुख्तार ने कूफे की अमीरी क्यों कर कबूल नहीं की? मुख्तार को मेरे इरादे का पता नहीं था, लिहाजा बकवास मत करना। हाँ, मुझे लगता है कि जब तक मुख्तार के रकीब की शक्ल में सुलेमान इब्ने सुर्द खुजाई है, मुख्तार कूफा नहीं जाएगा। वो तवाबीन का अंजाम देखना चाहता है, लिहाजा तामुल से काम ले रहा है। जब तक सुलेमान इब्ने सुर्द और उसके साथी कूफा में है, आपको फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं। जो इरादे मुख्तार के हैं उनकी राह में सुलेमान सबसे बड़ी रुकावट है। ज़हे नसीब मुस्लिम इब्ने उसजा के, ज़हे नसीब उन लोगों के जिन्होंने अपने आप को इश्क के काफिले से मिला दिया, और वाह हो हमारे हाल पर के जो नफ्स अम्मारा के हाथों जलील हो गए। हमने वो काम किया है कि अब कयामत तक औले अली कूफा से बेजार ही रहेंगे। मेरी मदद कीजिए कि हम अपनी खोई हुई इज्जत दोबारा पालें।
अगरचे मैं जानता हूं कि समंदर में बह जाने वाला पानी कभी वापस नहीं आता, मेरी मदद कीजिए कि हम इस शर्मिंदगी के दाग से दामन को पाक कर लें। हौसला पैदा करो कि फिर से जिंदा हो जाए। मैंने सुना है कि बाज कूफियों ने आले जुबैर के लिए बैत तलब की है। मैं जो कि तवाब हूँ, खून हुसैन का इंतकाम लेना चाहता हूँ। जहां तक आले जुबैर मेरी रुकावट नहीं बनेंगे, मुझे भी उनसे कोई सरोकार नहीं। आज मेरा जिहाद है, क़िसास है कातलाने हुसैन, और आरज़ू है राह हुसैन में मर जाना। तुम बिल्कुल ठीक डर रहे हो क्यान। यहाँ तो एक इज्तिमाई खुदकुशी की बू आ रही है। ये आग अपने आप को जलाने वाली है, दुश्मन को जलाने वाली नहीं। वाकई मुख्तार की सख्त जरूरत है। कभी कभार अबू इसहाक और उसके इन कामों पे शदीद गुस्सा आता है मुझे, इस कदर के मेरा दिल करता है अपना सर दीवार से टकरा दूं। न जाने किस उम्मीद पे मक्के में रुका हुआ है। ये हमारे ख्वाबों के पूरा होने के लिए बेहतरीन वक्त था। सब्र से काम लो क्यान। जिस मुख्तार को मैं जानता हूँ वो किसी बेकार और बंजर जमीन पर कभी कदम नहीं रखता। बेहतर है तवाबैन के अंजाम तक मुख्तार मक्का ही में रहे। क्यों बिन कामिल? क्योंकि वो सुलेमान के सामने नहीं आना चाहता। तुमने सुना नहीं, सुलेमान को हुकूमत से कोई सरोकार नहीं है। मुख्तार इस रविश के सख्त खिलाफ है। यजीद मलऊन जो वाक़े करबला का असल मुसब्बिब था, वासिले जहन्नम हो गया। बाद यजीद सितमगर इब्ने ज़ियाद खबीस और उसके कारिंदे हैं। इस कदर इस शक्तिउल कल्ब कौम से जंग करूं कि बफज़ल खुदा शहादत से हमकिनार हो जाऊं। जो भी मेरा हम अकीदा और हमदर्द है, इस बेकार दुनिया से अपना दिल उखाड़ ले और काफिले करबला का मुसाफिर हो जाए। क्या सोच रहे हो शेमर? मैं हैरान हूँ उमर, खुदा के कारनामों और जमाने की गर्दिश से हैरत ज़दा होकर रह गया हूँ। आमिर की हवा की मानिंद आई हुई हुकूमत कितनी अजीब है ना। एक शख्स तुम्हारी तरह सारी उम्र तलब हुकूमत में तड़पता रहता है, और एक शख्स आमिर की तरह रात को सोता है, सुबह उठ के देखता है तो पता चलता है कि अमीर बन गया। आमिर की अमीरी ज्यादा चलने वाली नहीं है, वो हवा के झोंके की तरह है। तो फिर उसकी बैत क्यों करना चाहते हो? तुम क्यों बैत कर रहे हो? मैं आले उमैया की ठोकर खाया हुआ हूँ उमर, इन लोगों से मायूस और बेजार हूँ। मुझे तो मुश्किल ही लगता है कि बनी उमैया के पास कोई ऐसा लायक इंसान बचा हो जो मुआविया की हुकूमत को जिंदा कर सके। मैं अपनी जान के खौफ से बैत कर रहा हूँ। तवाबैन के गुस्से से बचने के लिए मुझे मजबूरन आले जुबैर की पनाह लेनी होगी। कूफे से भाग क्यों नहीं जाते उमर? चला जाऊं? कहाँ चला जाऊं? वहीं जहाँ इब्ने ज़ियाद गया है, शाम। तुम भूल गए कि किस तरह झूठी जन्नतें दिखाकर हमें इस्तेमाल किया। यानी फिर से बेवकूफी करूं ताकि ये हरामजादा इब्ने ज़ियाद मेरे सर पे सवार हो जाए। हरगिज़ नहीं। अगर मुख्तार मक्का में ना होता तो मैं खाना काबा में पनाह ले लेता। मैं हाकिम नहीं हूँ, लोगों की खिदमत का अमानतदार हूँ।
आप लोगों ने बड़ी समझदारी का काम किया कि लोगों के साथ हम आवाज हो गए, का इरादा कर लिया। लोग फिरका वारियत से थक गए हैं। मेरे ख्याल से तव्वाबैन भी गलती पर हैं। ये लोग कड़े मुर्दे उखाड़ रहे हैं, मुर्दा भी अजाब में और जिंदा भी अजाब में। बहरहाल मैं कूफे वालों के काबिल एतमाद और खिदमत गुजार होने के नाते यही नसीहत करता हूँ कि तमाम मुसलमान भाईचारगी इख्तियार करें। यही बात खलीफा के हुक्म में हमें मिलती है। खलीफा चाहते हैं कि मुसलमान आपस में रहम दिली और नरमी का गोशा रखें, पुराने जख्मों पर लड़ना बंद करें और तमाम बुग़्ज़ और कीनों को बुला डालें। क्या तवाबीन खलीफा की बैत नहीं करना चाहते? क्या कहूं, मौजू को पेचीदा बना रखा है उन्होंने। ज़ुमानी बातें करते हैं। वो चाहते हैं कि खुदा भी मिल जाए और वस्ले जाना भी। ना आले जुबैर का साथ देते हैं और ना ही मुखालफत करते हैं। ये तो नहीं हो सकता अमीर, या इस तरफ हो जाएं या उस तरफ हो जाएं। जनाब खलीफा का क्या इरादा है? आप लोगों की खिदमत में अर्ज करूं कि खलीफा की बात एक दिलसोज बाप की सी है। उम्मीद है कि ये फर्जंदे खताकार गलत रास्ते से लौट आए और सीधे रास्ते पर चलने लगे और बाप के गम और गुस्से का बाइस न बने। अगर ये नाफरमान बेटा सीधे रास्ते पे ना आए तो क्या? बाप के सब्र की भी एक हद होती है। फिर नबी खुदा हजरत नूह और उनके बेटे की हिकायत हो जाएगी। जब सब्र का पैमाना लबरेज हो जाएगा तो बाप निजात पा जाएगा और बेटा हलाक हो जाएगा। मुझे अमीर की बातों से ये समझ में आ रहा है कि जो भी आले जुबैर की बैत करेगा गोया वो उनकी कश्ती में सवार हो गया है। वो तूफानों और तवाबीन की चोट से अमान में रहेगा। ठीक कहा ना मैंने अमीर? कोई मजाक की बात नहीं है शिम्र, मगर मुझे तुम लोगों से और ज्यादा तवक्को थी। अगर तव्वाबीन के खौफ से आप लोग आले जुबैर की बैत कर रहे हैं तो बेहतर है बैत ना करें और देर होने से पहले अपनी जान बचाएं और फरार हो जाएं शाम की तरफ। वो बैत जो किसी तरह के डर, खौफ या बेदिली के साथ हो वो किसी कदर कीमत की नहीं होती। लेकिन अगर आप लोग आले जुबैर पर ईमान ले आए हैं तो फिर बैत कीजिए ताकि आपको पनाह मिल जाए। मैं अपनी बैत की अपने खून से जमानत देता हूँ। खुदा करे कि ये बकवास न हो। इस बैत के जरिए आले उमैया से इजहार बेजारी करता हूँ और आले जुबैर से दोस्ती का मुश्ताक हूँ। ऐ तब्बाब भाइयों, वाक़े करबला के बाद सरगना मुसब्बिबीन ने इब्ने जुबैर के वालिए कूफा से बैत कर ली है। वालिए कूफा ने अपनी तरफ से ये काम नहीं किया होगा। यकीनन वो अपने खलीफा की तरफ से इस गलत बैत पर मामूर किया गया था। शिमर लईन और उमर सादे खबीस की बैत कबूल करने का मतलब है कि आले जुबैर ने अपने पिछले दावे सब वापस ले लिए, यानी तव्वाबीन से खुल्लम खुल्ला दुश्मनी करना जो हुसैन के खून का इंतकाम लेने वाले हैं। अगर यही तमाशे रहे कि हर चंद अरसे में कोई ताकत का भूखा
منحرف اور لالچی شخص کھڑا ہو کر دین کے نام پر بدترین اور سب سے گری ہوئی حرکتوں کا مرتکب ہو جائے اور جہاں تک ہو سکتا ہے مسلمانوں کے مال و ناموس کو لوٹتا رہے، اور ایک مسلمان حکمران ان سب باتوں کو نظر انداز کر کے اسے پناہ دے دے تو ایسے تو کوئی مسئلہ حل ہونے والا نہیں ہے۔ ابن زیاد جو مشہور ہے بنام ابن مرجانہ، اشقیاء میں شقی ترین شخص، اولیاء اور اوصیاء اور 72 شہدائے کربلا کا خونی دشمن اور قاتل، جو جھوٹ اور ریاکاری کا، خدا کی نافرمانی اور حرام کاریوں کا اہل ہے، اس کا اور اس کے ساتھیوں کا نجس وجود دار پہ لٹکایا جائے گا۔ یہ کون سی مسخرہ آمیز محفل ہے؟ یہ کون سی فضول باتیں پڑھ کر سنا رہے ہو؟ میں تھک گیا ہوں، جلدی سے اس تماشے کو ختم کرو مختار۔ میں کہتا ہوں یہ تماشا بند کرو۔ کیف انتقام تو تب ہے جب تم اپنی تلوار کو خون سے غسل دو گے۔ اپنی بکواس کو مر جاؤں کا زہر مت بناؤ۔ تم خود اچھی طرح جانتے ہو کہ میں خون اور خون ریزی کا عاشق ہوں، چاہے مروں یا مر جاؤں۔ مختار جان، مجھے وہ روٹی کھلا کے مارنا جو ملک کے رے کی گندم سے پکی ہو، یا چاہے اس کے کچھ بھوسی ٹکڑے ہی مجھے دے دو کہ وہ کھا لوں۔ اے مختار، مجھے غور سے دیکھو، میں وہ شقی ہوں جس نے اس نیک سپہ سالار کا خون اپنے ان ہاتھوں سے بہایا جس کا کوئی یاور نہ تھا۔ مجھے کھولتے ہوئے پانی کی دیگ میں پھینک دو۔ الوداع ہے خانہ کعبہ، الوداع ہے آنسوؤں کے قبلہ گاہ، الوداع ہے علی کی جائے پیدائش، شاید یہ ہمارا آخری دیدار ہو۔ خانہ کعبہ کا طواف قبول ہو مختار۔ آپ کا طواف بھی قبول ہو بھائی۔ ارکان پورے نہیں کرو گے؟ کوفہ سے حانی ابن جبہ وداعی صاحب، کیا حال ہے ابن جبہ؟ آپ کی دعاؤں سے ابو اسحاق، آپ کیسے ہیں؟ سانس چل رہی ہے، ہزار شکر ہے اس کا۔ جتنی دیر تم طواف میں تھے میں تمہیں دیکھ رہا تھا، تمہارا طواف تو طواف وداع تھا۔ کہاں کا ارادہ ہے انشاءاللہ؟ انسان کی موت ہر وقت انسان کے تعاقب میں رہتی ہے ہانی، شاید ابھی صحن کعبہ سے باہر قدم رکھیں، اور تو پھر بہتر ہے کہ انسان ہر وقت جانے کے لیے تیار رہے۔ کب تک مکہ میں بیٹھے رہنے کا ارادہ ہے مختار؟ بالکل کوفے کو بھول گئے ہو تم؟ اپنے گھر والوں سے ملنا نہیں چاہتے؟ خانہ کعبہ کے جوار میں رہنے کی توفیق ہر کسی کو میسر نہیں ہوتی۔ کوفے کی کیا خبریں ہیں ابن جبہ؟ کوفہ تو مت کہو جیسے کوئی طوفانی دریا ہے، صرف مختار کی کمی ہے۔ یزید کی موت کے بعد اب کوفیوں کو غیرت آ ہی گئی اور اموی کارندوں کو ذلیل اور رسوا کر کے کوفے سے باہر نکال دیا۔ لوگوں کی آل زبیر سے بیعت صرف مصلحت کے تحت ہے۔ ان لوگوں نے مجبوراً آل زبیر سے رضامندی کا اظہار کیا ہے۔ ظاہر ہے اندھوں میں کانا راجا ہوتا ہے۔ اگر تم کوفے میں ہوتے تو کم از کم لوگ عامر ابن مسعود کی طرف نہ جاتے۔ ابھی بھی دیر نہیں ہوئی ہے مختار، کوفیوں کو آل زبیر پر شک ہے۔
जनाब सुलेमान असुर तो थे नहानी, तो फिर उनकी बैत क्यों नहीं की तुम लोगों ने? सच तो ये है कि बहुत से लोग सुलेमान के गिर्द हैं, मगर सुलेमान बजाते खुद हुकूमत नहीं करना चाहता। हमने जितने भी जिद की उसने कबूल नहीं किया, रात दिन गिरिया करता रहता है। सुलेमान और उसके साथी तवाबैन के नाम से मशहूर हो गए हैं। उनका अकीदा यह है कि उनकी तौबा उस वक्त कबूल होगी जब ये शहीद होंगे। कूफियों की राय मुख्तार के बारे में क्या है हानी? किस हवाले से? हर हवाले से। जानना चाहता हूँ कि मेरे बारे में क्या कहते हैं। अच्छी अच्छी बातें करते हैं। हमने तो जो कुछ सुना है वो जंग मक्का में मुख्तार की शुजाअत और उसकी हरम काबा के दिफा में जानिसारी का ही सुना है। लोगों की आले जुबैर की तरफ जाने की एक बहाना तराश दलील तुम खुद हो। मैं? और क्या, कूफियों का तुम्हारी तशखीस पर ईमान है। लोग कहते हैं अगर आले जुबैर अच्छे लोग न होते तो मुख्तार उनके पास न रुके रहता। वाकईन? तुम अपने आप को इतना कम कीमत क्यों समझते हो अबू इसहाक? कूफे वाले तुम्हें अपना हिस्सा समझते हैं। तुम्हारा बैतुल्लाह का दिफा करना इन लोगों के गुरूर का बाइस बन गया है। तुम पर नाज करने लगे हैं ये लोग। तवाबैन का क्या उनकी भी यही राय है? तवाबैन को न मुख्तार से सरोकार है और न आले जुबैर से। उनका सारा गम शहादत पाना है। मैंने ऐसा कुछ नहीं सुना। मुख्तार, हाँ। तुम्हारे ख्याल से ये आले जुबैर कैसे लोग हैं? किस हवाले से? दीन, शरीयत, तरीकत और सलाहियत के हवाले से। क्या वाकई में दीन का दर्द है भी या सिर्फ रियासत के भूखे हैं? फकत खुदा ही अंदर के राज से वाकिफ है, हमें क्या पता। मेरे और हज़रत खलीफा के लिए खाने पीने और सोने से ज़्यादा मुक़द्दम ये है कि शरीयत का पास रखें। जनाब खलीफा चाहते हैं कि उनके भाई की बेवा हुक्म शरीयत के मुताबिक शादी कर लें, गैरों और अजनबियों से नहीं। वो चाहते हैं कि मैं जब तक ज़िंदा हूँ ज़ुबैर की बहू बनकर रहूँ। हुक्म सर आँखों पर। मगर मुंजल की मौत के बाद मैंने वो मन्नत मानी है जिससे मेरा निकाह मशरूत हो चुका है। कैसी शर्त है बानू? शर्त क़िसास। क़िसास? किससे? कातिल मुंजल से। मुंजर का कातिल एक बदनसीब और बेतुका सा शामी आदमी था जिसे मुंजर ने खुद वासिल जहन्नुम कर दिया। मुंजर का कातिल वो अलमदार है जिसने मुंजर को मैदान में जाने की इजाजत दी। मुख्तार? जी हाँ, मुख्तार। जब तक मुख्तार जिंदा है ज़ुबैर के तमाम बेटों के सर खतरे की ज़द में हैं। मुख्तार का मारा जाना हमारी हुकूमत के लिए बुरा कदम है खाशिया। तो उसे इस तरह भी मारा जा सकता है कि उसका खून हुकूमत बनी ज़ुबैर के सर ना आए। तुम बज़िद हो कि मुख्तार मारा जाए? मैंने मन्नत मानी है जाफर, अहद किया है खुद से। मन्नत का अदा करना वाजिब है। मेरा फैसला खून मुख्तार है। परवरदिगारा तुझी से दिल इत्मीनान का बाइस है।